and we will start today our second chapter. Chapter number 2, data types, assignment, and input output statements. So, basically, we will start doing the concept of GW Basic in this chapter. We will learn the basic concept that how we will make variables, how we will write the names of variables, what were the rules of naming variables, and who designed the basic language, what are the modes of operations, and that all the things like this. So, moving towards the topic number 2.1, that is introduction of this chapter. Introduction. Basically, we will study basic language, GW basic language in our this book of class 10th. Class 9th mein we were discussing all about the theoretical portion and a bit discussion about DOS. But in this book, after chapter number 1, we will thoroughly start learning GW basic. GW basic is the name of language. Now there is a brief introduction about basic language. The basic language was developed by John Kameny and Thomas Kurtz in 1963 at Dartmouth College, USA. Now, who is the developer of GW basic language? First of all, they are discussing about only basic language. बेसिक लैंग्वेज बनी थी, उसके बाद क्यू बेसिक आई थी, फिर जीडब्ल्यू बेसिक आपकी आई थी. बेसिक लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? दो साइंटिस्ट थे, जॉन कैमिनाई एंड थॉमस कर्ट्स, इन 1963 एट डॉर्थमाउथ कॉलेज. दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. डॉर्थमाउथ कॉलेज यूएसए में 1963 में जॉन कैमिनाई एंड थॉमस कर्ट्स डेवलप अ बेसिक लैंग्वेज in USA. It was invented as an instructional tool to teach fundamental programming concepts to students. It was developed to address the complexity issues of older languages. वो कहते हैं basically when they developed the basic language, the idea of the invention of this language was only to teach the fundamental concept, basic concepts बताने के लिए, instruction tools को बताने, detailed description about the tools. उसने बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था. बट लेटर ऑन ये जितनी बाकी लैंग्वेज की काफी जो पुरानी लैंग्वेजेस थी, देयर वर टू मच कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस. तो दैट इज व्हाई इट वाज डेवलप्ड टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज ऑफ ओल्डर लैंग्वेज. जितनी पुरानी लैंग्वेजेस थी उनमें जितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी, उन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपकी ये बेसिक लैंग्वेज उसने बनाई थी. बेसिक आइडिया ये था. GW Basic is an interpreter for basic beginners all purpose symbolic instruction code language. अब वो कहते हैं GW Basic जो था ये इंटरप्रेटर था बेसिक लैंग्वेज का. ठीक है, मतलब कन्वर्जन ऑफ 11 लैंग्वेज टू या सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट जब हमने करना होता है उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर. कंपाइलर, असेंबली हमने सारे पढ़े हुए भी हैं. क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था और चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा था. Now basic stands for beginners all purpose symbolic instruction code. There are many other translators, compilers, and interpreters for basic from other different vendors such as QBasic. QBasic stands for Quick Basic, which provides a menu-driven environment to write and execute basic programs. Here we shall refer only to GW Basic because it provides a simple and easy to use environment. वो कहते हैं QBasic आई, different compilers, different interpreters आते रहे इस language के बारे में, इसकी detailed description के बारे में, but we will discuss only about GW Basic over here, because it is one of the most simple and easy language and it's environmental free language. बहुत easy से समझ आ जाती है, इसकी जो commands हैं वो easy हैं, easy to understand है. Next is the modes of operations. GW बेसिक. अब यहाँ से हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी GW बेसिक के बारे में. GW बेसिक कैन ऑपरेट इन टू मोड्स. टू मोड्स में GW बेसिक आपका काम करता है, दैट इज डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड. दो मोड होते हैं, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, इन विच GW बेसिक कैन ऑपरेट. When GW basic is loaded, it shows OK message. वो कहते हैं जब GW बेसिक को हम लोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, हम GW बेसिक इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो इट शोज ओके मैसेज. ओके का जो वो मैसेज है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है. दैट यू कैन ऑल्सो सी इन दिस ब्लैक स्क्रीन इन फिगर 2.1, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मोड जहां उसने लिखा है. यहाँ पर देखें सबसे ऊपर आपको ओके का मैसेज नजर आ रहा है. ओके, एट दिस स्टेज इट इज इन डायरेक्ट मोड. अब जब ओके का मैसेज आपको नजर आ जाएगा, GW बेसिक लोड हो जाएगा. वंस द GW बेसिक हैज बीन लोडेड, इट शोज एन ओके मैसेज.
अब वो डायरेक्ट मोड में डिस्कशन बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है व्हाट बेसिकली डायरेक्ट मोड इज. इन डायरेक्ट मोड जीडब्ल्यू बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड. वो कहते हैं जीडब्ल्यू बेसिक में ऑल द कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप. जैसे ही हम अपनी कमांड्स को टाइप करते हैं, जैसे प्रिंट हमने कुछ करना है, हम प्रिंट लिखेंगे, जैसे ही हम लिखेंगे फौरन वो इंस्ट्रक्शन जो है हमारी, या फौरन जो कमांड है हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी. Results of arithmetic and logical operations can be displayed immediately, but the commands themselves are lost after execution. वो कहते हैं कि अगर arithmetic और logical operations कोई perform करने के लिए आपके पास आ गए हैं, मतलब आपने कोई प्लस माइनस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई ग्रेटर देन लेस देन लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे, ग्रेटर देन लेस देन, कोई इस तरह के हमने कोई चीजें करनी है, तो वो कहते हैं कि इस तरह के जो ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने हैं, देन द कैन दीज ऑल ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली, बट द कमांड्स देमसेल्व्स आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन. जैसे ही हमने कमांड लिखनी है, हमारा वो काम परफॉर्म हो जाना है, और जो कमांड होगी ना इटसेल्फ, वो आपकी गायब हो जाएगी. इट विल इमीडिएटली डिस्प्ले, वो खुद ब खुद ना आपकी डिस्प्ले, रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा, और कमांड जो है वो खत्म हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी. Once you have got the answer, this mode is useful for debugging and for quick computations that do not require a complete program. वो कहते हैं डायरेक्ट मोड कब आपका यूजफुल है. डायरेक्ट मोड इज यूजफुल व्हेन व्हेन इट इज यूजफुल फॉर डीबगिंग एंड फॉर क्विक, जब आपने जल्दी जल्दी से कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, आप यू डू नॉट नीड टू रिक्वायर राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम. आपने कोई कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिखना, कोई कॉम्प्लेक्स आपने टास्क परफॉर्म नहीं करवाना, सिंपली थोड़ा सा आपने कोई मैसेज प्रिंट करवाना था स्क्रीन पर, या कोई छोटा मोटा अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना था, देन यू नीड्स टू do operate GW basic in direct mode. अब आप लोगों ने बेसिक काम क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर, अपने लैपटॉप्स के अंदर, wheresoever you are operating, you use to perform the practical work, आपने GW बेसिक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है. बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, आपके इंटरनेट पर देखोगे सॉफ्टोनिक का एक पेज है, वहां पर भी पड़ा हुआ है ये. उसके अलावा हर जगह से आपको मिल जाएगा, इजी टू अवेलेबल है, और बहुत इसकी छोटी सी इसकी फाइल है, फ्यू MBs की फाइल है इसकी, जो आप डाउनलोड कर लोगे तो GW बेसिक जो है वो आपके कंप्यूटर में लोड हो जाएगा. ओके जब GW बेसिक लोड होता है, सेम जिस तरह हमने 9th क्लास में डॉस पढ़ा था, सिमिलर, इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट. आपने सेम उस पर क्लिक करोगे तो ब्लैक स्क्रीन जो है वो आपकी कंप्यूटर पे आपको डिस्प्ले पे नजर आने लग जाएगी. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मोड. द इनडायरेक्ट मोड इज यूज टू टाइप प्रोग्राम्स. अब वो कहते हैं जब आपने प्रोग्रामिंग करनी है, जब आपने लंबे लंबे प्रोग्राम लिखने हैं, तो बेसिकली आप कौन सा मोड यूज करोगे, इनडायरेक्ट मोड यूज करोगे. प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर्स एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी. जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं दैट वुड बी प्रोसीड बाय अ लाइन नंबर. जब कभी भी आपने प्रोग्राम लिखना है, whensoever you are using indirect mode, you have to write the complete programs, and all the programs are preceded by a line number. Means that the commands you are writing, first of all you needs to write the line number, then you can write the commands. हर स्टेप में आपको लाइन नंबर मेंशन करना पड़ता है कि लाइन नंबर 10 है, 20 है, 30 है, एंड द लाइन नंबर इज ऑफ सीक्वेंस जो है होती है ना इनकी, वो सेम होनी चाहिए. इफ यू आर यूजिंग 10 20 30, तो आप 10 20 30 40 10 10 की सीक्वेंस दोगे. अगर आप 5 5 की सीक्वेंस दे रहे हो तो 5 दोगे, 10 15 20 25 इस तरह से करोगे. मगर जो स्पेस है ना दरमियान में, ये वेरी नहीं करनी चाहिए. ये गुड प्रैक्टिस होती है आपके लाइन नंबर्स लिखने की. ओके द प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग द रन कमांड. अब वो कहते हैं जब आपने अपने प्रोग्राम पूरा लिख लिया, तो अब आपने उसे मेमोरी में लोड कर लिया, आपका प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट जब आपने करना है, तो फिर क्या करना है, आपने रन की कमांड देनी है. RUN रन आप लिखोगे तो आपका कमांड, वो प्रोग्राम जो है वो चलेगा. नाउ यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर, फिगर 2.2. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके का मैसेज आया हुआ है. ऑटो की कमांड आपने देनी है तो दे दें. ऑटो से क्या होता है, ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट हो जाता है, मगर ये थोड़ा आगे जाकर डिटेल हम पढ़ेंगे. अभी आप लोग खुद ब खुद लाइन नंबर दोगे. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 10 10 10 स्पेस दोगे. प्रिंट का लफ्ज उसने लिखा और उसके आगे उसने लिखा 786 डिवाइडेड बाय 3, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, डिवीजन कर रहा है. उसके बाद लाइन नंबर 20 पर उसने लिखा प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वेलकम टू GW बेसिक. whatsoever you will write in the inverted commas will be displayed on the output screen as it is. जो कुछ आप लिखोगे आपके आउटपुट की स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, जो कुछ इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे प्रिंट की स्टेटमेंट के साथ. अब लाइन नंबर 30 पर वो कह रहा है एंड.
लाइन नंबर 30 एंड, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो खत्म हो गया. अब बेसिक व्हाट दे डिड इन द प्रोग्राम, बेसिकली दे आर प्रिंटिंग अ दे आर डूइंग द टास्क ऑफ डिवीजन. डिवीजन का टास्क परफॉर्म कर रहा है और स्टेटमेंट एक प्रिंट करवा रहा है स्क्रीन के ऊपर कि वेलकम टू GW बेसिक. अब देखें, जब आपने रन की कमांड लिखी, RUN रन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ. जब आप रन की कमांड लिखोगे तो क्या होगा, यू कैन सी ओवर हियर रन. जब आपने ये रन लिखा है तो ये देखिए रिजल्ट आ गया 262. 786 को जब उसने 3 से डिवाइड किया तो 262 आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो गया. और लाइन नंबर 20 जब आपकी चली, अब लाइन नंबर आपकी सीक्वेंस में अभी चल रही है, ठीक है, 10 20 30 40 इस सीक्वेंस में चलेगी. लाइन नंबर 30 कैन नॉट मूव फर्स्ट एंड लाइन नंबर 10 कैन नॉट एग्जीक्यूटेड एट द एंड. सीक्वेंस में आप चल रहे हो. सो लाइन नंबर 20 सॉरी जब चली तो इट दे गॉट अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक. तो फिर क्या होगा आपकी स्क्रीन पर, वेलकम टू GW बेसिक. ये आपकी नीचे ही आउटपुट स्क्रीन होती है, मतलब इसके नीचे जहां प्रोग्राम एंड करोगे, रन लिखोगे, तो नीचे जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका आउटपुट. तो वेलकम टू GW बेसिक एज इट इज आपको प्रिंट हुआ हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और ओके का मैसेज आपको फिर नजर आ गया. ठीक हो गया. दिस वाज द इनडायरेक्ट मोड. अब ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड. तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन और इसकी ये छोटी छोटी जो दो ब्लॉक डायग्राम्स एग्जांपल दी हुई है उसने ब्लैक में, ये आपने इसमें बतानी होंगी, ठीक है. नेक्स्ट इज पेज नंबर, सेकंड पेज ऑफ दिस चैप्टर. GW बेसिक. अब दो चीजें होती हैं GW में बेसिक में, एक होती हैं कमांड्स और एक होती हैं स्टेटमेंट्स. नाउ व्हाट आर द कमांड्स, दे आर गिविंग द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स ओवर हियर. GW basic commands are executable instructions which are operated in the direct mode. They do not require a preceding line number. अब वो कहते हैं GW basic में कमांड जो होती हैं वो executable instructions होती हैं, ऐसी instructions होती हैं that are executed immediately and they do not require any preceding line number. line number की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती कमांड्स को, जब कभी भी आपने कमांड्स यूज करनी है उन्हें. Next is your statement. GW basic statements are written in as a program and each statement is preceded by a line number. अब वो कहते हैं जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप कहाँ पर लिखते हो, और दे आर रिटन एज अ प्रोग्राम. अपने अपने प्रोग्राम के अगर आपने कोई चीजें यूज करनी होती हैं, पूरा एक प्रोग्राम आप बना रहे हो किसी भी चीज का, तो उसके लिए जो आप चीज यूज करोगे वो होंगी आपकी स्टेटमेंट्स. और each statement is written with a preceded line number. अब जब whensoever you want to write the statement, you have to first of all write the line number, then you can write the statement. Next topic is writing programs in GW basic. ये जो ऊपर हमने देखे हैं अभी commands और statements के, these are also the short questions. ये भी दोनों आपके short questions हैं, ठीक है. Now they are telling the basic structure to write a program in GW basic. Writing programs in GW basic. GW basic provides an IDE. IDE stands for Integrated Development Environment, where we can write, edit, save, load and execute basic programs. अब वो कहते हैं कि GW basic provides a complete IDE. IDE का मतलब होता है कि जब आपने प्रोग्राम अपने डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको किस तरह का वो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि आप बेसिक उसमें कर क्या सकते हो. तो GW बेसिक आपको कंप्लीट IDE प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो. यू मे राइट अ प्रोग्राम, यू मे एडिट अ प्रोग्राम, सेव अ प्रोग्राम, लोड अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट अ बेसिक प्रोग्राम. ये सारी फंक्शनैलिटी आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो. अब ये GW बेसिक के जो आपको फिगर नंबर 2.3 नजर आ रही है यहाँ पे, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर GW बेसिक IDE. ये आपको स्क्रीन नजर आएगी when you will install the GW basic in your computers. Okay. Next. अब देखें यहाँ ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है इसके अंदर आपने नीचे देखें फर्स्ट लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, लिस्ट लिखा हुआ है, 2 रन, 3 लोड, 4 सेव. सो दीज ऑल आर द कमांड्स. ये सारी कमांड्स आपकी दी हुई हैं उसने. अगर आपने रन करना प्रोग्राम तो ये जो 2 है ना, इट मींस यू हैव टू प्रेस F2 फ्रॉम योर कीबोर्ड.
कीबोर्ड से F2 प्रेस करोगे तो आपका प्रोग्राम जो वो रन हो जाएगा. इफ यू वांट टू लोड अ प्रोग्राम, F3 प्रेस करोगे तो लोड हो जाएगा. सेव करना होगा, F4 प्रेस करोगे सेव हो जाएगा. यू कैन डू इट बाय राइटिंग द कमांड एज वेल, यू कैन डू इट बाय यूजिंग अ शॉर्टकट की. आप लिख भी सकते हो और शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज पेज नंबर 14, क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम. अब आपने प्रोग्राम क्रिएट भी करना है और उस प्रोग्राम को आपने सेव भी करना है. हाउ यू विल डू ऑल दीज टास्क्स. The program is a file that contains specific instructions or statements for the computer. अब प्रोग्राम क्या होता है बेसिकली, स्पेशल इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं या स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कंप्यूटर को कि यू हैव टू परफॉर्म दिस स्पेसिफिक टास्क. इन अ GW बेसिक प्रोग्राम्स लाइंस हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट. अब वो कहते हैं कि GW बेसिक में जब आपने प्रोग्राम लिखना है ना तो उसका ये फॉर्मेट होगा. सबसे पहले क्या फॉर्मेट होगा उसका, लाइन नंबर और फिर स्टेटमेंट. सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपने अपने लाइन नंबर मेंशन करनी होगी यहाँ पे और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी. where line number is an unsigned integer in the range from 0 to 65529. अब line number कहाँ से start कर सकते हो, you may start a line number from 0 and you have the basic जो उसने आपको दिया हुआ है कि कितना use कर सकते हो आप, तो वो 65529 इतने line numbers आप लिख सकते हो. मतलब 0 1 2 3 4 यहाँ से लेकर 65529 तक आप line number use कर सकते हो. एंड स्टेटमेंट्स इज एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट. और स्टेटमेंट क्या है, कोई भी वैलिड GW बेसिक की आपकी स्टेटमेंट हो सकती है. कोई आपने प्रिंट आउट करवाने हैं, कुछ भी आपने करवाना है तो कोई वैलिड आपकी GW बेसिक की स्टेटमेंट हो सकती है. A GW basic program line cannot have more than 255 characters. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर जो बता रहा है आपको. जो GW बेसिक के अंदर जो लाइन की रेंज है वो उसने बता दी 0 से लेकर 65529 तक हो सकती है. उसके अलावा जो GW बेसिक एक लाइन के अंदर आपने जितने करेक्टर्स लिख सकते हो ना बेसिकली, तो आप वो 255 करेक्टर्स लिख सकते हो. मतलब जो वर्ड्स जो टाइपिंग आपने करनी है ना एक लाइन के अंदर, आप 255 करेक्टर्स लिख सकते हो इंक्लूडिंग स्पेसेस. स्पेस को वो इंक्लूड करता है. स्पेस को इंक्लूड करके आप 255 करेक्टर्स एक लाइन में लिख सकते हो. However, there may be more than one statement on a line. वो कहते हैं एक लाइन में एक से more there can be more than one statements, एक से ज्यादा statements हो सकती हैं. If so, each must be separated by a colon. अगर ऐसा हो तो किस तरह से आपने अलग statements कर करके लिखनी है, you have to put a colon sign. ठीक है, कॉलन का साइन आपने यहाँ पर आप यू कैन सी ओवर हियर, कॉलन का साइन आप यूज करते हुए अपनी स्टेटमेंट्स को एक लाइन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हो. The program statements are executed depending on line number in ascending order. अब वो कहते हैं प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स है ना वो लाइन असेंडिंग ऑर्डर की लाइन नंबर में यूज की जा सकती हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ line 45 is typed after line 60, the computer would still run line 45 before line 60. अब वो सो यू कैन राइट लाइन नंबर 40. अब आपने अगर लाइन नंबर 45 आपने पहले लिखा, if you have typed line number 45 first after line number 60, computer would still run line number 45 first. कंप्यूटर जो है वो पहले लाइन नंबर 45 ही सॉल्व करेगा. जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि अगर आपने लाइन नंबर 30 पहले लिख लिया या लाइन नंबर 20 पहले लिख लिया तो इट डजंट मैटर, कंप्यूटर विल एवेल्युएट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम. कंप्यूटर प्रोग्राम की जो सीक्वेंस होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रोग्राम जो है वो चलेगा. Next is reuse of an existing line number causes all the information contained in the original line to be lost. You may erase some program lines by accident. वो कहते हैं आप एक लाइन नंबर को रीयूज
कर सकते हो, बट योर ओरिजिनल लाइन विल बी लॉस्ट। जो ओरिजिनल लाइन में आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी थी, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 45 में आपने कोई इंफॉर्मेशन लिखी थी, इफ यू आर यूजिंग line number 45 again, then the original information which you have written in line number 45 will be lost. In order to use the program in future, we must save it. अब उसने यहाँ पर create the program तो बता दिया, now they are telling us about the to save the program. To save a file in GW Basic, the following procedure is used. अब ये procedure उसने बताया कि अगर आपने अपने program को save करना है तो किस तरह से करेंगे. Press the F4 key और type save command. अब आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर आपने अपने प्रोग्राम अगर आपने सेव करना है, देन यू नीड्स टू प्रेस द F4 की. F4 की जो है वो आपने प्रेस करनी है. आप F4 की अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हो, और यू मे राइट और यू मे टाइप अ सेव कमांड. सेव की कमांड भी आप टाइप कर सकते हो. टाइप अ वैलिड नेम इन कोट्स फॉर द प्रोग्राम. अब आपने अपने प्रोग्राम में नेम जो लिखना होगा कि जिस नाम से आपने फाइल सेव करनी है, यू हैव टू राइट इट इन द कोटेशंस. कोटेशंस में आपने वो नाम लिखना है एंड प्रेस द एंटर की. द फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम. तो जिस नेम जो नेम आप कोटेशंस में लिखोगे, उस नाम से आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी. सो बेसिक कॉन्सेप्ट टू सेव अ फाइल इज ऑफ टू यूज अ कमांड ऑफ सेव. Next is how to load the program. Loading the program. Loading the program refers to bring it into memory from secondary storage devices such as hard disk so that it can be used. अब program को अगर आपने load करना है तो वहां कहाँ से load होगा? बेसिक आपका कंट्रोल कहाँ से होगा? आपने अपने मेमोरी से यू हैव टू ब्रिंग द डाटा, और यू हैव टू यू हैव टू लोड द प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, so that it can be used. A safe program can be loaded by using the following procedure. Number one, press the F3 key or type load command. Now what you are doing, you are loading the program into the memory from memory to from secondary storage devices to the memory. First step you need to follow is you have to press the F3 key from the कीबोर्ड. आपने अपने कीबोर्ड से F3 की जो है वो प्रेस कर देनी है, और यू विल टाइप अ लोड कमांड. आपने या तो बाय यूजिंग कीबोर्ड यू हैव टू राइट अ load command, LOAD. You will write load, or you will press the F3 key. Type the name of an existing file in quotes. आपने अपने फाइल का नेम लिखना है डबल कोटेशंस में, सेम सिमिलर टू दैट यू यूज टू राइट फॉर सेविंग अ प्रोग्राम. इस तरह प्रेस एंटर. नाउ यू विल प्रेस द एंटर की. The file is loaded into memory and is ready to list, edit और run. अब जब आपकी फाइल जो है वो मेमोरी में लोड हो गई है, now it's ready to list, edit और run. अगर आपने कुछ एडिटिंग करनी है, रन करना है, लिस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो your file is ready to load. Bullet number 1. If the file does not exist or an invalid path is typed, an error message is displayed. वो कहते हैं कि अगर आपकी जो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती और इनवैलिड पाथ आपका शो कर देते हो, तो फिर इनवैलिड पाथ आप टाइप कर देते हो कि यहाँ पर से मेरा प्रोग्राम लोड करो, तो व्हाट द सिस्टम विल डू, सिस्टम विल प्रिंट एन एरर मैसेज. एक एरर मैसेज आपकी स्क्रीन पर नजर आने लग जाएगा. द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज .bas. अब आपके प्रोग्राम की जो डिफॉल्ट GW बेसिक प्रोग्राम की डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है वो .bas होती है. .bas. This is an important short question as well as an important MCQ, that what is the default extension of GW basic program? It is .bas. basic है ना, ये GW basic है, तो .bas से निकला ये. To save the file in a directory, you should specify the complete path
with the file name, otherwise the file will be saved in the current working directory of GW Basic. वो कहते हैं कि अगर आपने कोई फाइल डायरेक्टरी में सेव करवानी है, यू हैव टू स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ विद द फाइल नेम. फाइल के नेम के साथ आपको कंप्लीट पाथ जो है फाइल का वो आपको शो करवाना पड़ेगा, अदरवाइज जो फाइल जो आपकी होगी दैट विल बी सेव्ड इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. अदरवाइज आपकी जो फाइल होगी वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, जो जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उसमें आपकी फाइल जो है वो स्टोर हो जाएगी. Okay, so today in this lecture we will study up till topic number 2.3.2. In our next class we will study the how to execute the program, etc.